Hello, students. Today I'm going to cover the line graph and I'm going to cover it completely from A to Z. I have only two requests. Watch it completely and watch it in one go. मतलब पूरा देखना अगर देखना है नहीं तो I don't mind अगर आपने नहीं देखना आपको आता है. It's good. I'm making this video to help you. But if you know it, you're not required to watch it. Second मेरी एक request है कि इकट्ठे देखना. Please don't do के 2 minutes देख के फिर 5 मिनट की break ले ली फिर ऐसे. Please don't do that because then it would not help. It would harm you actually. ठीक है. And एक मैं credit देना चाहता हूँ my student. He helped me in making this video presentation. Arshdeep. So I want to give a shout out to him because he really helped me a lot. Okay. So let's start. Uh, this is the question I have taken. And I'll read the question once. The chart below shows the average amount of time spent by 4 car manufacturers to produce vehicles in the US. Then after reading the question, I look at the diagram once. So I looked at the diagram. These are the 4 car manufacturers, General Motors, which is the blue line, the green line for Ford, similarly the gray for Toyota and yellow for Honda. Okay, I got it. There are 4 car manufacturers. They're producing vehicles from the time is given from 1998 to 2005. And the time is given in hours per vehicle. So per vehicle, how much time they are taking. So the first thing when I do now, I look at the question and I look at the diagram completely and I try to understand what the graph is saying. The graph here is talking about the average time. So I know it's 34 is the time taken to produce cars by General Motors. 34 hours is taken by General Motors because that's the blue line. And in which year? 1998. सो अगर मैं हिंदी में बोलूं बड़ा सिंपल है कि 34 आवर्स लिए थे उन्होंने कार बनाने के लिए जनरल मोटर्स ने इन 1998. ऐसे एक बार मैं अंडरस्टैंडिंग जरूर कर लेता हूं बिफोर आई मूव टू राइटिंग द आंसर द ग्राफ. ओके, नाउ लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन लिखने में मेरे सजेशंस हैं. पहला एक सजेशन है, यूज बोथ द क्वेश्चन एंड द डायग्राम. इट मीन्स के कुछ इंफॉर्मेशन ना क्वेश्चन में नहीं होती है and there's some information only present in the diagram. So I want you to look at both the things. एक चीज को नहीं देखना है क्योंकि अगर आप एक चीज को देखोगे कई चीजें मतलब ज्यादा अच्छी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो दोनों को देख के and it'll be different also. जैसे कि इस ग्राफ में अगर आप देखो the years are not mentioned in the question. They are mentioned in the diagram 1998 to 2005. Similarly, the names of the car manufacturers, 4 car manufacturers, they are only given in the diagram. So why not use both of them? It would help. Second thing, my advice is do not spend a lot of time on the introduction. I know, I've teach, and in my class I see I give students time to write a graph, and for the 5 minutes they're on their introduction. So why are they spending time on the introduction? Because they want to impress the examiner. There's no harm in impressing the examiner, but introduction is not the right place. What can we do in the introduction to impress the examiner? ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हो. तो यहाँ पे 2 मिनट से ज्यादा टाइम देना is a wastage of time. So please don't do that. यहाँ पे एक synonym लिखा के कुछ नहीं होगा. You won't get much. You won't score better bands, I would say. Third thing मैं ये कहूँगा, paraphrasing is overrated. A lot of students are crazy about paraphrasing. उनको लगता है बस यहाँ पे मैं कोई एक word बदल दूँ. मतलब they feel, for example, line नहीं, उन्होंने linear लिखना है. It seems, अब at basic level जिसने अभी इंग्लिश सीखी है, he will think कि line का linear लिख के he has done a very good job, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है. For a person whose English is good, he'll say, why is he using linear for line? It sounds so stupid. Why not just use line? So मेरी advice है कि कई बार हम ओवरडू करते हैं पैराफ्रेजिंग. ओवरडू करने की जरूरत नहीं, ये आर्टिफिशियल चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. लास्ट मेरी एडवाइस है, इंट्रोडक्शन में ग्राफ का टाइप जरूर मेंशन करना है. फॉर एग्जांपल इट्स अ लाइन ग्राफ. तो अब ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए द इंट्रोडक्शन दैट आई हैव रिटन, आई विल से हियर द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स the average time spent on production of cars by General Motors, Ford, Toyota, and Honda from 1998 to 2005. Now I've taken both the diagrams
both the diagram and the question. I've taken the information about the car manufacturers from the diagram, years from the diagram, and the rest of the information I've taken from the question and written it. I'm not overthinking this. ये मेरी advice थी 2 minutes. इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें. Now let's come to the part which will impress the examiners overall. So overall में मेरे कुछ बहुत suggestions हैं and it's different from others. So first suggestion मेरा है write 2 features. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई थिंक एक फीचर जो होता है ना, हम ज्यादातर एक फीचर लिखते हैं स्टूडेंट्स. एक फीचर अधूरा लगता है, मतलब ऐसे लगता है वी आर जस्ट राइटिंग इट के लिखना है ओवरऑल. फीचर्स आर रिटन फॉर अ पर्पस कि हम ग्राफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दें जिससे कुछ पता चले ग्राफ के बारे में. सो दैट विल रिक्वायर एटलीस्ट 2 फीचर्स. Second thing है write complete information. This I'll explain when I give an example. Third, length does not matter. A lot of you come to me कि मैंने ये shortcut करा because length ज़्यादा हो रही थी. तो यहाँ पे ना length के बारे में overthink करना please stop. हम 2 features रख रहे हैं. That means 2 sentences. We are not going to write more than 2 sentences. But length नहीं matter करती है. अगर थोड़ा 50 words भी हो जाएगा, please do not worry. And fourth is use comparison words. Overview में comparison words करना is really important. Okay, now let's come to the first feature. First feature मेरा बहुत simple है. मैं लिखता हूँ trends from beginning to end. Beginning to end का मतलब है I'll show you what I mean. और trends होते क्या हैं? Trends होते हैं increase, decrease, fluctuate और stable. ये trends होते हैं. अब I'll teach you what are trends here. For example, GM, it started at 34. The blue line starts at 34. It comes down, and it is ending at around 21, I think, 2021. So what happened to it? It decreased. Okay, now let's pick another line, green, Ford. It started at 27. This is 26. You can take it 28. It increased a bit, but it ended at again 22. So overall trend from beginning to end is decrease. हालांकि बीच में इंक्रीज हुआ था, पर अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो डिक्रीज ही हुआ ना. If I take a simple example, you start at 7, let's example you start with 100 rupees, आपके 120 भी हो जाते हैं, पर अगर अल्टीमेटली आपके पास 60 होते हैं तो हम यही बोलेंगे डिक्रीज हुए हैं. And these, if you look at these 2 lines, they are fluctuating. They're going up, then down, then up, then down. So that is nothing but a fluctuation. So for gray and yellow, which is Toyota and Honda, I would consider them fluctuated. For GM and Ford, I would say decreased. अब यही चीज मैंने लिखनी है. The average car production time by GM and Ford went down, while the time spent by Toyota and Honda increased over the given period. यहाँ पे अब देखो मैंने लिखा है while is the comparison word जो मेरे को बता रहा है कि दोनों के ट्रेंड्स डिफरेंट है. ऊपर जो ट्रेंड आ रहा है दैट इज went down, एंड नीचे जो ट्रेंड आ रहा है वो है increased. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दिस कि वो ये लिखते हैं द एवरेज कार प्रोडक्शन टाइम बाय जीएम एंड फोर्ड वेंट डाउन, बट जब यहाँ पे लिखने की बात होती है दे डू नॉट राइट द टाइम स्पेंड बाय, दे जस्ट राइट टोयोटा एंड होंडा. तो टोयोटा एंड होंडा नहीं लिखना, पूरा लिखना है द टाइम स्पेंड बाय टोयोटा एंड होंडा. टोयोटा एंड होंडा नहीं गिरे हैं, उनके द्वारा जो टाइम स्पेंड करा जाता था वो गिरा है, वो फ्लक्चुएट हुआ है. एंड सॉरी, यहाँ पे इंक्रीज नहीं आना, यहाँ पे फ्लक्चुएटेड आना है. आई मेड अ मिस्टेक हियर. Okay, moving forward, let's come to the next graph. Okay, I've taken another example now. So look at this. यहाँ पे हम example ये ले रहे हैं कि तीनों lines के trend different है. तो एक बार मैं question जल्दी से पढ़ देता हूँ, and then we'll practice writing the introduction overall again. So the graph below shows the sales of children's book, adult fiction books, and educational books between 2002 and 2006 in one country. तो अगर आप देखो blue line किसकी sales है? चिल्ड्रंस बुक की. रेड लाइन है सेल्स किसकी? एडल्ट फिक्शन की. एंड एजुकेशनल बुक्स की सेल्स है ग्रीन लाइन. ओके, सो इफ यू लुक एट इट, एडल्ट फिक्शन की सेल जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है विद टाइम. द ब्लू लाइन इज गोइंग अप, तो वो इंक्रीज हो रही है. एंड एजुकेशनल बुक्स की ऊपर नीचे हो रही है, सो वी कंसिडर इट फ्लक्चुएटेड. अब हमने लिखा है चिल्ड्रंस बुक की इंक्रीज है, एडल्ट फिक्शन की डिक्रीज है, एंड एजुकेशनल बुक्स की फ्लक्चुएटेड है. सो यही बात हम लिखेंगे. Sale of children's books increased while sale of adult fiction decreased, and sale of educational books fluctuated over the given time period. मैं ये properly इसलिए लिखना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था, because a lot of students do what, उनको लगता है कि ये लंबा हो रहा है इसलिए हमने लिखना नहीं है. देखो इतना लंबा नहीं हुआ,
लिखना हमने तीनों का है। अगर यहाँ पे 10 लाइंस भी होती ना, मैं 10 का 10 लिखता। देखो 10 होता तो ऐसे नहीं होता, आपको 10 ट्रेंड्स बताने होते। ट्रेंड्स तो 3-4 ही रहते हैं ना। ट्रेंड्स यहाँ तो क्या हो सकता है, इंक्रीज होगा, यहाँ तो डिक्रीज होगा, यहाँ तो फ्लक्चुएट होगा, यहाँ तो स्टेबल होगा। लेट्स इमेजिन एक और कंट्री, एक और बुक आ जाती, तो वो भी हम इंक्रीज में आ जाती है, डिक्रीज में आ जाती है, हम उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सेल ऑफ चिल्ड्रंस बुक एंड अनदर बुक इंक्रीज, तो लंबा नहीं बनता। एंड वो एक गलती ना मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू व्हाट, बार बार सेल नहीं लिखना, अच्छा सेल हटा देते हैं, सेल ऑफ चिल्ड्रंस बुक इंक्रीज्ड व्हाइल एडल्ट फिक्शन डिक्रीज्ड। पूरा गलत हो जाएगा, एडल्ट फिक्शन नहीं डिक्रीज हो रही है, उनकी सेल डिक्रीज हो रही है। सो प्लीज यहाँ पे ना रेपिटेशन की वरी करते हुए, रेपिटेशन के कारण इनकम्प्लीट लिखना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स। सो इट्स अ बिग मिस्टेक, प्लीज डू नॉट वरी सो मच अबाउट रेपिटेशन। ओके, नाउ आई एम टेकिंग वन मोर केस। इस केस में सारी की सारी लाइंस इंक्रीज हो रही हैं। इफ यू लुक एट ब्लू, ये देखो सिंगापुर यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड्स हायर, इंक्रीज है। पर्पल स्टार्ट्स हियर, एंड्स हायर, इंक्रीज है। ग्रीन स्टार्ट्स हियर, एंड्स हियर, हायर, इंक्रीज। Red starts here, ends here, increase. So all the lines increased with time. What do the lines represent? Shows the percentage of 18 to 25-year-olds in universities. So सारी countries में जो परसेंटेज थी 18-25 ईयर ओल्ड्स की यूनिवर्सिटीज में, वो टाइम के साथ क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। सो वही बात मैंने लिखी है, द परसेंटेज ऑफ 18 to 25-year-old स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटीज इंक्रीज्ड इन ऑल द कंट्रीज ओवर द गिवन पीरियड। सारी कंट्रीज में इंक्रीज हो गए। ओके, आई होप इट्स क्लियर। फर्स्ट ट्रेंड इज क्लियर, कैसे लिखना है फर्स्ट फीचर। नाउ कमिंग टू द सेकंड फीचर। सो सेकंड फीचर में ना हमने मैक्सिमम लिखना होता है। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम में सबसे ज्यादा कौन सा है। सो अब अगर आप देखो, ये 2000 है, 2000 तक अगर आप देखो, सबसे ऊपर कौन सी लाइन है, जनरल मोटर्स। मतलब सबसे ज्यादा, याद है ये टाइम टाइम वाला ग्राफ है कि टाइम कितना लग रहा था कार मैन्युफैक्चरिंग में, तो सबसे ज्यादा कब कौन ले रहा था टाइम, यहाँ तक, जनरल मोटर्स, अराउंड 2000 तक। इस पॉइंट के बाद ग्रीन टेक्स द लीड, ग्रीन ऊपर आ जाता है, ब्लू उसके नीचे है। मतलब सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, फोर्ड। तो हम मैक्सिमम लिखते हैं अगेन फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। तो यहां से लेके यहां तक कौन है, जनरल मोटर्स। इस पॉइंट के बाद कौन है, फोर्ड। तो GM took the maximum time to produce cars till 2000, while after 2000 the maximum time was taken by Ford. तो यहां तक GM ने लिया, इसके बाद फोर्ड ने लिया। अगेन एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, प्लीज वो ना सिर्फ फर्स्ट ईयर का लास्ट ईयर का बता देंगे, प्लीज वो मत करना। जैसे कि यहाँ पे जनरल मोटर्स टुक द मैक्सिमम टाइम टू प्रोड्यूस कार्स इन 2000, सिर्फ 2000 का, 1998 सॉरी, इन 1998, एंड इन 2005 कौन ले रहा है, फोर्ड। तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का बता देंगे, लास्ट ईयर का मेरे को फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर का नहीं जानना है। यू हैव टू नो अबाउट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। सो यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम टाइम कौन ले रहा है, जनरल मोटर्स, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर इट्स फोर्ड। सो ये लिखना है हमने, यहां से लेके यहां तक एंड यहां से लेके यहां तक पूरा। ओके, नाउ लेट मी टेक सम अदर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल। अब यहाँ पे भी अगर आप मैक्सिमम देखो, यहां से लेके यहां तक सबसे ऊपर लाइन कौन सी है, द रेड लाइन। ये थोड़े से टाइम के लिए यहां से लेके यहां तक, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम हेयर टू हेयर, ब्लू लाइन ऊपर हो जाती है, फिर दोबारा रेड लाइन। मतलब अगर आप देखो, सो 20 ईयर्स है, 1987 से लेके 2007, सिर्फ बीच में 4-5 साल ऐसे हैं जब कोई ब्लू लाइन ऊपर हो रही है, उससे भी कम है, आई थिंक इट्स लेस देन दैट, जब ब्लू लाइन ऊपर हो रही है। सो इसके अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, इसके अंदर आप इग्नोर मार सकते हो, पर इग्नोर मारने का तरीका है, आपने लिखना है जैसे कि इन जनरल द मैक्सिमम इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटेड द कोस्ट। ये ग्राफ मैंने डिस्कस नहीं करा था, ये दिखा रहा था कि कितने विजिटर्स तो 3 एरियाज में गए थे। द रेड एरिया इज द कोस्ट, द ब्लू एरिया इज द लेक्स, एंड द ग्रीन इज द माउंटेन्स। तो कितने लोग गए कोस्ट पे, कितने लोग गए माउंटेन्स पे, कितने लोग गए लेक्स पे। तो अब देखो मैक्सिमम लोग कहाँ जा रहे हैं, कोस्ट पे, इन जनरल। इन जनरल का मतलब है आमतौर पे, मतलब हमेशा नहीं, आमतौर पे देखा जाए तो मैक्सिमम लोग कहाँ जाते हैं, कोस्ट पे जाते हैं। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई थी, तभी हमने क्या लिखा है, इन जनरल, आमतौर पे। अगर आपको और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, इससे ज्यादा अच्छा लिखना है, तो आई वुड सजेस्ट यू कैन राइट द मैक्सिमम इंटरनेशनल टूरिस्ट्स विजिटेड द कोस्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द गिवन टाइम पीरियड।
तो मैक्सिमम टूरिस्ट कहाँ जा रहे थे, कोस्ट पे जा रहे थे फॉर मेजोरिटी ऑफ द गिवन टाइम पीरियड, मेजोरिटी ऑफ द टाइम पीरियड के लिए वो कहाँ जा रहे थे, कोस्ट पे जा रहे थे। इज इट क्लियर? सो यहाँ से इंफॉर्मेशन क्लियर होती है। सो आई होप ये वाला ऑप्शन भी क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है। नाउ लेट्स टेक वन मोर ऑप्शन। ये ऑप्शन में अगर आप देखो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही मैक्सिमम है। ये मैंने इसलिए सिखाया है, ये वाला एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है बिकॉज आई वांट टू टीच यू द वर्ड थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है शुरू से लेके एंड तक। तो यहाँ पे भी हम यही लिखते हैं, जैसे कि अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा था, द रेड लाइन इज फॉर द यूएस, द ब्लू इज फॉर द यूके एंड द ग्रीन इज फॉर द ऑस्ट्रेलिया। क्या दिखा रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज थ्री कंट्रीज, फ्रॉम द यूएस, द यूके एंड द ऑस्ट्रेलिया, हु स्टडीड इन यूनिवर्सिटीज इन अदर कंट्रीज, जो बाकी देशों में स्टडी कर रहे थे, मतलब जो यूएस में कर रहे थे, जो यूके में कर रहे थे एंड जो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे। एंड अगर आप देखो तो शुरू से लेके एंड तक यूएस में ही मैक्सिमम थे। तो यूएस हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज अब्रॉड थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड। तो यूएस वाले मैक्सिमम थे जो बाहर पढ़ रहे थे थ्रू आउट द पीरियड, तभी यहाँ पे थ्रू आउट द गिवन पीरियड लिखा। इज इट क्लियर? तो ये मेरा सेकंड फीचर है। तो सेकंड फीचर में मैं मैक्सिमम लिखता हूँ। आई होप इट्स क्लियर। मैक्सिमम क्या होता है? जो लाइन सबसे ऊपर है, क्योंकि वो बाकियों से ज्यादा है। एंड पहला फीचर क्या होता है? ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या हो रहा है? डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे इसका ट्रेंड क्या है? रिलेटिवली स्टेबल रहा है, ये इतना ही रहा है। अगर आप देखो अराउंड 50,000 के पास ही रहा है, पर है ये मैक्सिमम। ठीक है, इसका ट्रेंड क्या है? डिक्रीज। ये मैक्सिमम नहीं है। इसका ट्रेंड क्या है? स्टेबल। और ये क्या है? मिनिमम, ये सबसे कम है। तो दोनों ट्रेंड्स, दोनों फीचर्स आपने अच्छे से लिखने हैं। एक फीचर होता है ट्रेंड का और एक होता है मैक्सिमम। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ग्राफ, टू द कंबाइंड। हम कंबाइंड कैसे लिखते हैं ओवरव्यू? तो कंबाइंड ओवरव्यू हमने लिखना है, फर्स्ट फीचर लिखना है, फिर हमने कनेक्टर लिखना है, फिर हमने सेकंड फीचर। देखो यहाँ पे कनेक्टर मैं जरूर लिखता हूँ टू शो कि मेरा फर्स्ट फीचर एंड सेकंड फीचर डिफरेंट है। आई वांट द एग्जामिनर टू पे अटेंशन कि ये फर्स्ट फीचर, इसके अलावा सेकंड फीचर। सो देखो फर्स्ट फीचर, व्हाट डिड आई राइट? द एवरेज कार प्रोडक्शन टाइम बाय दिस एंड दिस वेंट डाउन। तो इन दोनों का जो कार प्रोडक्शन टाइम था वो वेंट डाउन हो गया था। while the time spent by Toyota and Honda ये fluctuate हुआ था। यहाँ पे I've made that mistake, we've discussed this earlier. Furthermore, GM took the maximum time to produce cars till 2000। 2000 तक सबसे ज्यादा किसका नंबर था? GM का। and 2000 के बाद सबसे ज्यादा किसका था? Ford का। तो these two things I've written here. Okay, moving forward, now we'll come to the body paragraphs. Body paragraphs में first paragraph कैसे लिखना है? It's really simple. सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। आई थिंक बॉडी पैराग्राफ्स को ना मैं स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ, वो बहुत इजी हो जाता है। सो सबसे पहले यू हैव टू गिव डेटा फॉर द फर्स्ट ईयर फॉर ऑल लाइंस। सो जनरल मोटर्स का फर्स्ट ईयर का 34 था, फोर्ड का कितना था? 28 था, और इन दोनों का कितना था? 22। ट्रस्ट मी, ऐसे हमने चारों का डेटा देना है। एंड आई शो यू, मैंने आगे करा कैसे हुआ, आई शो यू दैट ऑल्सो। फिर आपने ना एक ब्रेक ईयर सिलेक्ट करना है। ब्रेक ईयर क्या होता है? मैं आई टेल यू व्हाट अ ब्रेक ईयर इज। Break year is जहां पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस ब्लू लाइन, इट्स डिक्रीजिंग, इट्स कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। इसका कहीं ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ। देखो अगर आप देख रहे हो, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिक्रीज का जो स्पीड थी वो कम हो गई, स्लाइट हो गया, पर अल्टीमेटली तो ट्रेंड क्या है? डिक्रीजिंग है। फोर्ड का देखो तो यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है अराउंड रफली 2001 तक। इफ यू लुक एट इट, 2001 के बाद क्या हुआ? डिक्रीज। सो दिस इज व्हाट, इसका ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है 2001 पे। नाउ लेट्स लुक एट द पर्पल लाइन, द पिंक लाइन इफ यू वुड कंसिडर। यहाँ तक क्या हुआ? इंक्रीज। यहाँ इसके बाद डिक्रीज, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ। इसके यहाँ तक डिक्रीज हो रहा था, इसके बाद क्या हुआ? इंक्रीज। यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज हुआ। 2002 में भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, देखो यहाँ तक इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है दोबारा, इसके बाद इंक्रीज हुआ। सो यहाँ पे तो हर ईयर में यू कैन कंसिडर ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगेन यू लुक एट इट, ये वाली लाइन 1999 में ट्रेंड चेंज हुआ, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो ऐसे हमने लिख लेने ईयर्स जहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। सो फोर्ड का एक ट्रेंड चेंज हो रहा था 2001 में, टोयोटा का हर साल में ही हो रहा था, पर हमने ये मतलब लिख ही लिए ईयर्स, ये वाले सालों में ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। होंडा का भी ऐसे लिख लिया। अगर आप देखोगे 3 लाइन के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं 2001, सो दैट्स द ब्रेक ईयर आई एम सिलेक्टिंग 2001, बिकॉज यहाँ पे 3 लाइन्स के क्या हुए थे? ट्रेंड चेंज हुए थे। सो दैट्स माई ब्रेक ईयर।
अब बॉडी पैराग्राफ में आपने क्या करना है, आपने पहली लाइन का तो डेटा दे दिया, पहले पहले ईयर का। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी लाइंस के ट्रेंड्स लिखने हैं ब्रेक ईयर तक, कि ब्रेक ईयर के साथ इन लाइंस के साथ क्या हुआ। ट्रेंड लिखने हैं, ये नहीं लिखना 2001 का डेटा नहीं देना है, 2001 तक के ट्रेंड लिखने हैं, कि जैसे ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये फ्लक्चुएट हुआ, ये भी फ्लक्चुएट हुआ। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, ट्रेंड्स लिखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स लुक हियर। सो सबसे पहले अब मैं फर्स्ट ईयर का डेटा लिख रहा हूँ। तो इन डिटेल इन 1998 जनरल मोटर्स टुक अराउंड 34 आवर्स टू मैन्युफैक्चर अ व्हीकल। तो जनरल मोटर्स ने अराउंड 34 आवर्स लिया। while Ford took about 6 hours less, पर फोर्ड ने कितने घंटे कम लिए जनरल मोटर्स से? 6 hours less, 28. And both Toyota and Honda took 22 hours per vehicle. And इन दोनों ने कितना लिया? 22 hours. तो सबका मैंने डेटा दे दिया फर्स्ट ईयर का, सारी लाइंस का डेटा, प्लीज रिमेंबर अगेन। फिर मैंने देखे क्या ट्रेंड्स है 2001 तक। तो जीएम का डिक्रीज, फोर्ड का इंक्रीज 2001 तक। एंड इन दोनों का अगर आप देखोगे तो फ्लक्चुएटेड फ्लक्चुएटेड, यहाँ से इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, फिर डिक्रीज। सो हमने यही लिखना है फ्रॉम 1998 टू 2001। पहले हम लिखते हैं 1998 से हम कहाँ तक बात करने जा रहे हैं, 2001, बिकॉज वो हमारा ब्रेक ईयर है। Time taken by this General Motors decreased to around 29 hours, while the time taken by Ford increased to 31 hours. इनका डिक्रीज होके इतना आ गया 29 hours, while time taken by Ford increase हो गया 31 hours. Please remember to use comparison words. यहाँ पे डिक्रीज था, यहाँ पे while इसलिए था क्योंकि ये ट्रेंड्स डिफरेंट है। ओवर द सेम ड्यूरेशन, इसी दौरान मतलब 1998 से लेके 2001 तक, टाइम टेकन बाय टोयोटा एंड होंडा फ्लक्चुएटेड स्लाइटली फ्लक्चुएट हो रहा है, ज्यादा कहीं ऊपर नीचे नहीं हो रहा, स्लाइटली फ्लक्चुएट कर रहा है। एंड स्टूड एट 22 and 20 hours respectively in 2001, and 22 hours and 20 hours था around respectively in 2001. This ends our first paragraph. First paragraph में हमने break year तक लिख दिया. Okay. So we started with the first year data and we came till the break year. Now let's go in the second paragraph, what we have to do after the break year. अब बहुत सिंपल है, अब हम ब्रेक ईयर से लेके लास्ट ईयर तक ट्रेंड लिखेंगे एंड फिर हम लास्ट ईयर का डेटा भी देंगे। ये आप साथ में ही लिख सकते हो, जब आप ट्रेंड लिखोगे आप साथ में लिख सकते हो कि इंक्रीज होके इतना हो गया, डिक्रीज होके। यहाँ आप सिर्फ पहले ट्रेंड लिख लो और उसके बाद डेटा लिख लो अलग से। एंड में दोबारा डेटा लिख सकते हो कि लास्ट ईयर में इतना था, इतना था, इतना था, इतना था। ये डिपेंड करता है आप पे, और ये डिपेंड करता है ग्राफ की लेंथ पे। अगर ग्राफ छोटा होता है तो मैं पहले ट्रेंड लिखता हूँ, फिर मैं दोबारा डेटा देता हूँ। अगर ग्राफ पहले ही लंबा हो रहा है तो मैं साथ में ही डेटा दे देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओवर द लास्ट 4 years, अब ये लास्ट 4 years में क्या हुआ 2001 से लेके, अब हम 2001 पे थे। 2001, ये 1 year, 2 year, 3 years, 4 years। तो ये 4 years, ओवर द लास्ट 4 years, time taken by Ford and GM decreased, and in 2005 both spent nearly 22 hours per vehicle। तो फोर्ड का भी डिक्रीज होना शुरू हो गया, जीएम का तो कंटिन्यू हुआ डिक्रीज होना, एंड बोथ स्पेंड अराउंड रफली 22 hours per vehicle। यहाँ पे लगभग इतने स्पेंड कर रहे हैं इन दिस ईयर। ओके, by contrast, time taken by Toyota and Honda increased to nearly 24 hours from 2001 to 2002। अब मैंने इनका लिया है, अब इनका देखो तो 2001 से लेके 2002 तक इनका पहले इंक्रीज हुआ। तो मैंने यही लिखा है कि इन दोनों का 2001 से लेके 2002 तक इंक्रीज हुआ, एंड नियरली कितना पहुंच गया, 24 आवर्स। दोनों का इंक्रीज होके 24 आवर्स पहुंच गया। एंड फिर दोनों का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। However, after that, there was a considerable fall in production time in both the companies, and they both spent 20 hours on production in the last year. And last year में दोनों कितना spend कर रहे हैं, 20 hours. So that's what I've written here. So this is my complete graph. अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके end तक, and I hope it's clear. If you have any doubts, you can write it in the comments and I'll answer. And I hope it is helpful. अगर helpful होगा, please do like and subscribe. And if you want any other graphs, you can write down there and I can make a video for that कि कैसे attempt करना है. Thank you.